ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਬ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ 1 to 100 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦਾ, ਇੱਕ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, what is the correct sequence of the following actions required for preparing the financial account। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਰੈਕਟ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਦੈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1, 4 ਐਂਡ 3 ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੂਗਾ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ 1, 4, 3। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਦੈਟ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੈਲਫ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਲ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਨੋਨ ਸਟੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਨ ਸਟੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਸਟੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, VPP ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਆਲ ਅਬਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮ ਸੈਲਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ, ਚਾਹੇ VPP ਹੈ, ਸਟੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਬਸਟੈਕਲ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੈਂਸ। ਜਿਉਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਆਬਸੋਲੈਂਸ। Clear. So correct answer is C. Next question, commercial banks do not perform the one function out of the following। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਨੋਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ RBI ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following is not a capital asset under the capital gain ahead of the income tax ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਗੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਟਾਕ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸਟਾਕ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, A। ਸਟਾਕ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਲਾਸਟਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ। ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ, ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 1। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ
प्रॉफिट्स आर मैक्सीमाइज, प्रॉफिट कितने मैक्सीमाइज कितने होंगे जिथे AMR इक्वल्स टू MC होंगे ने। तुसीं डायग्राम देखिया होना परफेक्ट कंपीटीशन के अंदर AR एंड इक्वल्स टू MC सॉरी AR इक्वल्स टू MR, जिथे भी MC कर्व कटूगी ਉਹਦਾ मैक्सीमम प्रॉफिट पॉइंट होगा। क्लीयर। सो कितने होंदा वा वेयर AMR इक्वल्स टू MC। करैक्ट आंसर इज A। नैक्सट क्वेश्चन रिबेट ऑन अ बिल डिस्काउंटेड। रिबेट होंदा जो आप बिल की होंगे ने, ये बिल ऑफ एक्सचेंज चो है, चाहे आप बिल रिटायरमेंट ऑफ द बिल हो जाए, चाहे रिबेट ऑफ द बिल हो जाए, है ना। सो आपको ये बारे पता होना चाहिए। जो रिबेट ऑन अ बिल वह मतलब होंगे कि आप जो पैसे एडवांस च लै लें, इनकम रिसीवड इन एडवांस। सो इसका करैक्ट आंसर है वो की आ C। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन बिल्स ऑफ पेमेंट का आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आ गया। कैन बी फेवरेबल इन इफ द, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। सौखा जहा क्वेश्चन आया सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल इफ, कहता बैलेंस ऑफ पेमेंट कदों फेवरेबल होंगे जो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करता, इंपोर्ट इंक्रीज़ करूगा तो अनबैलेंस होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करूगा। बच्चे मोस्टली यही आंसर ला करते हैं, बट जो डीवैल्यूएशन ऑफ द मनी होंगी आ तो भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आ वो फेवरेबल होंगे। ये गल याद रखियो। सो करैक्ट आंसर की आ D। नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। नॉट पूछा, सो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होंदा वा, वैल्यू ऑब्जेक्टिव होंदा, वैल्थ मैक्सीमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव होंदा वा। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ऑब्जेक्टिव ਨੂੰ कंसीडर नहीं करते वो कहता सोसाइटी के वैलफेयर लिए वो ज़्यादा अपने आप को कंसीडर नहीं। फाइनैशियल मैनेजमेंट आ, ये फाइनैशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं गा। अदर प्रॉफिट हो गया, चाहे वैल्यू हो गया, वैल्थ हो गया, ये ऑब्जेक्टिव आ फाइनैशियल मैनेजमेंट के। जो मैक्सीमाइजेशन ऑफ सोशल बैनीफिट्स ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं गा। सो इसका करैक्ट आंसर है वो D है, क्योंकि आपने इतने नॉट पूछा सीगा। नैक्सट क्वेश्चन इनकम टैक्स। हाँ जी, इनकम टैक्स की होंगे डायरैक्ट टैक्स। GST की है GST इज़ अ इनडायरैक्ट टैक्स, ये सबनों पता ही है। सौखा जहा क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 P's ऑफ द मार्केटिंग। हाँ जी, प्लेस प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन की नहीं आया, ये प्लेस नहीं आया। सो राइट आंसर इज A। उन्हें नॉट पूछा सीगा, किहड़ा नहीं आया, A नहीं आया। NAV नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज रिलेटेड टू द, हाँ जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस नाल नहीं डील करते, फिक्स एसेट डिपॉजिट्स नाल नहीं डील करते, टैक्स नाल भी नहीं डील करते, की डील करते हैं नॉन नैट एसेट वैल्यू। सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह रहे हैं, नैट एसेट वैल्यू की डील करती है सिक्योरिटीज़ ना, इक्विटी शेयर्स ना, प्रेफरेंस ना। नैट एसेट वैल्यू। क्लीयर। नैट एसेट वैल्यू जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो बैंक ना डील करती है, इतने गल कर रहे हैं आप नैट एसेट वैल्यू। क्लीयर। नैट एसेट वैल्यू। सो नैक्सट क्वेश्चन याद रखियो, नैट एसेट वैल्यू है फुल फॉर्म। नैक्सट क्वेश्चन इंटरनेशनल बिजनेस इनवॉल्व। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर की इनवॉल्व होंगे, ट्रेनिंग लोकल हो सकती है, प्रोडक्शन लोकल हो सकता है, पैकिंग लोकल हो सकती है। जो एक्सपोर्ट आ वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंडर ही कंसीडर होगा। नैक्सट क्वेश्चन स्पैकुलेटर इज़ अ पर्सन। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पैकुलेटर इज़ अ पर्सन हु इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, हु यूज हिज ओन फंड्स ओनली, हु इज विलिंग टू टेक अ हाई रिस्क हाई रिटर्न, और हु कंसीडर अ हेयर सेज मार्केट बिहेवियर। देखो बेसिकली बच्चे ही करते हैं परफॉर्मेंस नहीं लगाते, ओन फंड्स नहीं लगाते, बच्चे ही करते हैं C ऑप्शन लगा देंगे, दैट हु इज़ विलिंग टू टेक अ हाई रिस्क और हाई रिटर्न। स्पैकुलेटर जरूर वो रिस्क लेंदा वा, बट स्पैकुलेटर्स का जो काम होंगे वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते और खुद रिस्क टेकर नहीं होंगे। वो की करते हैं सिर्फ मार्केट में जज करते हैं, मार्केट के बिहेवियर में जज करते हैं। सो जो करैक्ट आंसर है वो D है, ना कि C। इस चीज़ में ध्यान रखियो। स्पैकुलेटर्स वो होंगे ने ਜਿਹੜੇ मार्केट में जज करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हुण पैसा इन्वेस्ट करो, हुण ना करो, और वो रिस्क टेकर भी होंगे ने। इन्वेस्टमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन अ हाउस प्रॉपर्टी इज़ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, नॉन नेगोशिएबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या इकनॉमिक इन्वेस्टमेंट या नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट की है जी ऑन हाउस प्रॉपर्टी वो की है एक तरह की नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। क्लीयर। तो आप जो करैक्ट आंसर है वो की है D। नैक्सट क्वेश्चन की कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ मनी मार्केट। पहली गल मनी मार्केट की होंगे, जो थोड़ा ये पता होगा तो ही आंसर क्लीयर होगा। मनी मार्केट होंगे शॉर्ट टर्म मीनस 1 ईयर, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म आ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टर्म आ, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म आ, NSE लॉन्ग टर्म आ। NSE की है लॉन्ग टर्म आ। सो ये की है करैक्ट आंसर है। उन्हें पूछा जी नॉट कि नहीं गा, सो जो करैक्ट आंसर है वो की है B। ये मनी मार्केट के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता। क्लीयर। सो करैक्ट आंसर इज B। नैक्सट अंडरराइटिंग हैज़ टू टेक अप। हाँ जी, अंडरराइटर की होंगे ने, अंडरराइटर वो होंगे ने
ਜਿਹੜੇ ਕਿ मतलब अपने इक्विटी शेयर कैपिटल ਨੂੰ सेल आउट करने ਵਿੱਚ हेल्प करते हैं। बट इत्थों ने पूछा फिक्स पोर्शन ऑफ द फिक्स इशूड कैपिटल लेंदे ने, नो कोई फिक्स कैपिटल नहीं लेंदे। द एग्रीड पोर्शन कैन रिफ्यूज इट, नो ऐ नहीं होंदा कि रिफ्यूज कर देन। नन ऑफ भी नहीं, ਜਿਹੜਾ करेक्ट आंसर वो की है बी। दे एग्रीड पोर्शन ऑफ द अनसबसक्राइब पार्ट, वो पार्ट ਜਿਹੜਾ अनसबसक्राइब्ड होंदा ਉਹਦੇ ਤੇ एग्रीड पोर्शन ਤੇ ਉਹ काम करते हैं, सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की है द ओपन एंडेड स्कीम्स आर। हाँ जी, ओपन एंडेड स्कीम्स की होंगी ने, ओपन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, नो। लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज, नो। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਸਕੀਮ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 90 ਅਬਵ, ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ 90 ਅਬਵ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 90 ਅਬਵ ਮੀਨਸ 90 to 100। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਸਟ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਓਲਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, नो ਕੰਪੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, हाँ जी, कंपलसरी डीलिस्टिंग कहने कंपलसरी डीलिस्टिंग कदों होंदी है, जो मर्जर हो गया तो दूसरी कंपनी ना चलूगा। थिन ट्रेडिंग भी नहीं हो सकता। कैपिटल साइज़ में घटाने वाली सब वायलेशन होंदी है जो उदों डीलिस्ट कर दिता जाता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कोई भी एग्रीमेंट है वो मतलब वायलेट करता, मतलब तोड़ता वा। सो नैक्सट क्वेश्चन, ए एंड बी की अपन रेशियो दी है 2/3, ए एंड बी की रेशियो दी है 2/3 और ए का अपन दस दिता कि 72 आ और बी की आप जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ये तुसी कर सकते हो कैलकुलेट, ये थोड़ा मैथमेटिकली आ गया। सो जो करैक्ट आंसर हो किया 108। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, द प्रिंसीपल ऑफ एस्पाइट द क्रॉप। इतने कुछ क्वेश्चन मिसिंग ने, वो असल अपने सिलेबस नहीं, वो मैथमेटिकली आ जाते हैं। सो वो अपने सिलेबस ना डील करके ता करके इतने कंसीडर नहीं किया गया ताकि थोड़ा टाइम ना वेस्ट हो। नैक्सट क्वेश्चन, द प्रिंसीपल ऑफ द एस्पाइट द क्रॉप रेफर्स टू द। हाँ जी, ये सब तो सौखे प्रिंसीपल 11th क्लास के आप पढ़ते हैं। प्रिंसीपल्स ऑफ द 11th या 12th के पढ़ते हैं। प्रिंसीपल ऑफ स्पाइट द क्रॉप रेफर्स टू द। हाँ जी, स्पाइट द क्रॉप्स ये किस चीज़ को रैफर करते हैं, ये दो होर ने गैंग प्लैंक का थोड़ा पता होना चाहिए वो बारे भी। सो ये स्पाइट द क्रॉप किस चीज़ को डील करता वा, यूनियन इज स्ट्रेंथ। जो अपन कॉन्सैप्ट क्लीयर ने, प्रिंसीपल्स चंगी तरह क्लीयर ने। सो इसका जो राइट आंसर है वो की है, स्पाइट द क्रॉप की डिफाइन करता, यूनियन इज स्ट्रेंथ। नैक्सट क्वेश्चन, which among of the following statement is correct in related to the difference between trial balance and the balance sheet। correct पूछा और trial balance ते balance sheet के difference पूछा। both statements are not account, नहीं जी, balance sheet आप accounts के अंदर consider करते हैं। trial balance is all ledger balance, yes ये true है। balance sheet की provide करते हैं financial statement, yes ये true है, उन्हें correct पूछा सी। so इसका आंसर क्या है, B आया ना, बट आप बाकी भी गल डिस्कस कर लेने। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, नहीं जी साल के एंड प्रिपेयर होंगे। ट्रायल बैलेंस इंश्योर अर्थमैटिक एक्यूरेसी, यस, बट बैलेंस शीट अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं डिफाइन करती। बैलेंस शीट एसेट्स ते लाइबिलिटीज़ को डिफाइन कर दी है। सो नैक्सट क्वेश्चन इज, आ सोल ट्रेडर परचेज गुड्स फॉर होम यूज़। कहते सोल ट्रेडर है उन्हें घर के यूज़ लिए अपनी गुड्स लिया परचेज की एंड पेड आ कैश फ्रॉम द ऑफिस। दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर च नहीं रिकॉर्ड होगी, नो नीड, नहीं रिकॉर्ड तो आप करेंगे क्योंकि अपनी स्टॉक हिलिया। सो आप इनू कितने रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करांगे क्योंकि आप कैश पेमेंट की और वो सोल ट्रेडर है। नैक्सट क्वेश्चन की डिफाइन करता आपू, बिजनेस एथिक्स इज इन नेचर। बिजनेस एथिक कहते किस तरह का नेचर है वह, देखो परमानेंट नहीं गा। बिजनेस एथिक रूल्स एंड रेगूलेशन चेंज होते रहते हैं। एब्सोलूट भी नहीं गा, वो की है नॉन एब्सोलूट, क्लीयर, नॉट एब्सोलूट। सो इसका करैक्ट आंसर की है, बी। नैक्सट क्वेश्चन, सीविट एम्प्टर। हाँ जी, सीविट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीविट एम्प्टर होंगे एक वेंडिटर होंगे। सो जो वेंडिटर आ वो सैलर के बिहेवियर डिफाइन करता, जोड़ा वेंडर आ वेंडिटर होंगे, वेंडर मैं आप वेंडर लिखते हैं इतने, वेंडिटर होंगे वेंडर आ जो सैलर के बिहेवियर डिफाइन करता, केड़ा सेविट वेंडिटर। बट इत्थे गल पूछा गया एम्प्टर दी, एम्प्टर डील करता बायर नाल। सो डिफाइन करूँगा बायर, लैट द बायर बी वेयर। इसका मीनिंग ये होंगे लैट द बायर, लैट ये अपना लैट द बायर बी वेयर, इसका मीनिंग ये है
let the buyer beware बट इत्थे एम्पलॉयर की गल की नहीं आऊगा, क्रेडिटर की गल की नहीं आऊगा, सैलर की गल की नहीं आऊगा। सो इसका करैक्ट आंसर है डी आ। मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे दी है कि किस चीज़ डिफाइन करता, बायर नूं डिफाइन करता। सो वो बायर अपन ऑप्शनस नहीं गा। सो इसका करैक्ट आंसर की है डी। नैक्सट क्वेश्चन बिल ऑफ लैंडिंग। हाँ जी, बिल ऑफ लैंडिंग की होंगे, ये अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर नाल डील करता, बिल ऑफ एक्सचेंज नाल नहीं डील करता, चैक नाल भी नहीं, प्रॉमिसरी नोट नाल भी नहीं डील करता। एक ही करता डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट है जो टाइटल ऑफ द गुड्स होंगे, जो गुड्स में लैके डिटेल के इन्फॉर्मेशन होंगी है। सो 87 का जो करैक्ट आंसर है वो की आ डी। नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी, द मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी। ये कहते थ्योरी चंगी तरह होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ। कहते एस्टीम नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स के विच किहड़ी नीड्स आउंदी आ, जिहड़ी बेसिक नीड्स आ वो सब तो बेसिक आ थल्ले आ जाती है, सिक्योरिटी नीड्स उस तो उपर जाती है, स्टीम जिहड़ी इन्हां दे विच आउंदी आ वो किहड़ी नीड हुंदी आ, सोशल नीड्स। क्लीयर। सो इसका जो करैक्ट आंसर आ ये है। ये थोड़ा 5 स्टैप्स ने, 5 तरीके दी नीड्स ने डिफाइन किया। सो तुहानूं पता होनी चाहिए किहड़ी-किहड़ियां ने, तां तुसीं करैक्ट आंसर दे सकोगे। नैक्सट क्वेश्चन द स्पैन ऑफ कंट्रोल की होंदा। द स्पैन ऑफ कंट्रोल की होंदा वा कि जो एक मैनेजर होवे उहदे अंदर सबऑर्डीनेट्स होण, उन्ने सबऑर्डीनेट्स होण जिन्हां कि वह वैल मैनेज ते कंट्रोल कर सके। सो इत्थे चैक करो आंसर, एम्पावर लोअर लैवल ऑफ एम्पलॉइज, नो कंसनट्रेट ऑन डिसीजन मेकिंग, नहीं सेंट्रलाइजेशन। इस चीज़ की कोई स्पैन ऑफ कंट्रोल ना लिंक ही नहीं गा, लिंक इस नहीं ना नंबर ऑफ सबऑर्डीनेट्स आ मैनेजर कैन इफेक्टिवली डायरैक्ट, कि वो डायरैक्टली इंस्ट्रक्ट कर पाऊगा। सो करैक्ट आंसर इज डी। नैक्सट क्वेश्चन हाउ डज द कमर्शियल बैंक क्रिएट अ मनी। मतलब क्रेडिट क्रिएशन की गल आ गई कि बैंक्स किमें मनी क्रिएट कर दियाँ, बाय प्रिंटिंग मनी नो, बाय इशूइंग ATM नो, है ना, एक्सैप्टिंग डिपॉजिट्स नाल भी नहीं मनी क्रिएट होंदी है। मनी किमें क्रिएट होंदी है, बाय लैंडिंग आ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट, जिहड़े बैंक कोल डिपॉजिट होंदे ने जो आपां नूं लोन के तौर पर बैंक दिंदी है, तो उस चीज़ नाल उन्हां नूं बेनीफिट हुंदा वा। सो करैक्ट आंसर इज बी। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन द मोनोपलीज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द। हाँ जी, मोनोपली की हुंदा, मोनोपली की हुंदा सिंगल सेलर, सिंगल सप्लायर। सो करैक्ट आंसर इज बी। नैक्सट क्वेश्चन द सस्पेंस अकाउंट इज़ जनरली ओपन टू रेटिफाई। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट कदों बनता वा, कहते कदों आपां ओपन करते हैं, किस चीज़ में रेटिफाई करने लिए, एरर प्रिंसीपल एरर दे विच, प्रिंसीपल ऑफ एरर्स दे विच गलती आ जाऊगी, तो वो अपने अकाउंट्स से कोई इफेक्ट नहीं पऊगा। आपको पता लग जाता कंपनसेशन ऑफ एरर जो कंपनसेट कर गया तो भी अपने अकाउंट्स से कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। बट जो वन साइड एरर होंदा तो आपको पता भी नहीं लगता कि कितों फिर आप अकाउंट्स की क्लोजिंग करते हैं, उदों आप सस्पेंस अकाउंट को की क्रिएट करते हैं। सो इसका जो करैक्ट आंसर है वो की बी। नैक्सट क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ द बिल। हाँ जी, रिटायरमेंट ऑफ द बिल मतलब ये नहीं होंदा कि कैंसल हो जाना, रिटायरमेंट ऑफ द बिल मतलब ये नहीं होंदा कि डिस्काउंट हो जाना, एंडोर्स भी नहीं होंदा। रिटायरमेंट मतलब असी पेमेंट करती, हुण उहदी कहानी खत्म होगी। सो करैक्ट आंसर की है बी। नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी, कॉगस पढ़ के देखो क्वेश्चन की कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। हाँ जी, कॉगस इफ द गुड्स सोल्ड आर ₹2000 and 25% ऑफ द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बच्चे ही करते हैं प्रॉफिट 25% वो चक के लगा देंगे और 1500 आंसर आ जाऊगा, ये गलत हो जाऊगा। बट उन्हें पूछा कॉगस की होंगी है, कॉगस का जो फार्मूला वा वो होंदा वा सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, चलो प्रॉफिट लगा लो। बट इतने आप गल करनी कॉगस कैलकुलेट करना, सब तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट किमें निकलूगी। सैलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होंदा है ना। सैलिंग प्राइस आपको पता वा 2000 और कॉस्ट आपको नहीं पता, आप एक्स मान लें प्लस 25x प्लस 25% ऑफ एक्स। हुण जे तुसीं इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे, देखो 2000 इक्वल्स टू एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स मतलब 25% एक्स। जो तुसीं कैलकुलेट करोगे तो तुहाडा आंसर है जोड़ा वो 1600 आ जाऊगा। एक और सिंपल तरीका डायरैक्ट ऑप्शन आंसर्स तो दे के भी चल सकते हो कि मैं 25% ऑन कॉस्ट लाना, अपन कॉस्ट गिवन जो तुम 1600 तो 25% लगाओगे तो 400 आ जाऊगा। जो 400 प्लस कर दोगे तो थोड़ा जो आंसर है वो 2000 दिखन लग जाऊगा थोनू। दैट मीनस यदा आंसर करैक्ट किया वो सैलिंग प्राइस दिखन लग जाऊगा। सो ये किया आ प्रॉफिट हो गया, आ कॉस्ट होगी, दैन जो टोटल कर दोगे तो सैलिंग प्राइस बन जाऊगा। सो इसका करैक्ट आंसर किया ए। नैक्सट क्वेश्चन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अपीयर इन द बैलेंस शीट। हाँ जी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज अपीयर इन द बैलेंस शीट। पहली गल करंट एसेट्स नहीं डील करता। सो पहली ऑप्शन तो सैकेंड ऑप्शन चली गई, एसेट साइड नहीं डील करता, ये डील करता लाइबिलिटी साइड, वो अपनी प्रोविजन नहीं होंगी। जो करैक्ट आंसर वो किया सी। क्लीयर, ये लाइबिलिटी साइड आता, करंट लाइबिलिटी होंगी अपनी।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ बैड डेट्स रिकवर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स लेके चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ ये क्वेश्चन अपन 2018 भी मिला सी 2016 के पेपर भी मिला सी। सो इसका कॉन्सैप्ट तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। कहते बैड डेट्स जो रिकवर हो जाती है कित्थे एडजस्टमेंट होंदी आ। रिडक्शन फ्रॉम डेटर्स नो तो असीं जो प्रोविजन बनाने उदों डिडक्ट करते हैं। ऐड टू डेटर्स जो सानूं पैसे ही मिल गए तो असीं ऐड क्यों करांगे डेटर्स दे विच। डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट की करते हैं प्रोविजन करते हैं और जो रिकवर हो जाती है उदों असीं की करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस दे क्रेडिट साइड। क्लीयर। सो इसका करैक्ट आंसर है वो की आ ए। नैक्सट क्वेश्चन बैंक रिकनसीलेशन स्टेटमेंट इज़ अ प्रिपेयर टू द रिकनसिल। हाँ जी बैंक रिकनसीलेशन स्टेटमेंट की आ कदों बनाई जाती है किहदे लई बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस के लिए सबनों पता कि कैश बैंक के लिए बनाई जाती है और बच्चे ही करते हैं कैश बैंक चक के ऑप्शन लाए होंगे। ये गलत आ। असल दे विच कल लिए बनाई जाती है एज पर कैश बुक बनाई जाती है विद द बैंक स्टेटमेंट एज पर बैंक पासबुक। सो इसका जो करैक्ट आंसर वो डी है। बच्चे की करते बैंक कैश देखा चक के टिक कर देंगे गलत है। नैक्सट क्वेश्चन एनी डोनेशन रिसीवड इन अ स्पैसीफिक परपस। जे जनरल परपस होंदा तो रेवन्यू बन जाना सी। जे स्पैसीफिक परपस आ जे मैनू किसी ने डोनेशन दिता कि तुसीं स्कूल दे विच रूम बनाने आ तो वो जिहड़ी मेरे वो स्पैसीफिक परपस बन एक तरह की मेरी लाइबिलिटी बन जूगी और वो एक कैपिटल रिसिप्ट होंदी है एक टाइम के उपर अपनी वो कैपिटल रिसिप्ट आ। सो की आ कैपिटल रिसिप्ट। जो वो मैनू कोई लाख रुपया जनरल तौर पर दे दिंदा मैनू कोई स्पैसीफाइड ना करके आंदा कि तुसीं रूम बनाने वट एवर 1 लाख रुपया वैसे ही डोनेट कर दिंदा फिर वो मेरा रेवन्यू रिसिप्ट बन जाना सी। बट स्पैसीफिक परपस के लिए जो अपन डोनेट किया गया वो की बन जाता कैपिटल रिसिप्ट। नैक्सट क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट। हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक किवें वैल्यूड किया जाता कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच आर इज लो। ये आप बहुत बार पढ़ा है सिंपल जहा क्वेश्चन है। सो क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर किया जाता मार्केट प्राइस और विच एवर इज लोएस्ट। सो हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन अज का प्राइम कॉस्ट। इस तो पहला मैं थोड़ी गल क्लीयर कर देना कि इस तो नैक्सट वीडियो के अंदर आप नवा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करांगे और तुसीं इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि सारे क्वेश्चन पेपर एक दूसरे नाल मैच करते हैं। उसका बेसिकली कारण की हुंदा वा कि ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाए होंगे ने और यही क्वेश्चन कोरिलेट करके जो भी नवा पेपर सैट होंदा इन्हां दे विचों ही निकल के नवा पेपर आ जाता। सो कोशिश अपनी भी कि तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाए तुहाडे नाल और जरूर रिवाइज करके जाओ सारे क्वेश्चन पेपर्स नूं। लास्ट क्वेश्चन अज दा प्राइम कॉस्ट इज़ टोटल कॉस्ट इज़ अ डायरैक्ट कॉस्ट मटीरियल कॉस्ट या ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट या फिर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट। कोशिश की जाऊगी कि तुहानूं सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे एक वीडियो स्पैसीफिक वीडियो बना के दी जाए। सो इत्थे प्राइम कॉस्ट का मतलब है कि टोटल इज अ डायरैक्ट कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट की होंगी टोटल ऑफ द डायरैक्ट कॉस्ट। सो इसका करैक्ट आंसर वो की ए। आई होप तुहानूं वीडियो चंगी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दैन सबसक्राइब एंड शेयर तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ का बेनीफिट उठा सकन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।